So today we are going to start exercise 6.1. Question number 1. Solve to 24x less than 100 when x is a natural number and x is an integer. See, simply solve का मतलब है we have to find the solution. Correct. So how we are proceeding in this particular problem? It is very simple to understand. Suppose I have 24x less than 100. है ना? As per the rule which we have already understood in our previous video, हमने ऐसा कहा था कि if I divide with the same number, same positive number, तो inequality change नहीं होगी. So what I am going to do is I am going to divide both the side by 24. So here 24 get cancelled. X less. अब 100 by 24 है. We need to identify a smaller number as much as possible. So let me say 52 12, 6, 25. So 25 by 6. What I got value of x lesser than 25 by 6. अब this inequality is true when. क्यों मैंने ऐसा लिखा? Because we have two cases. पहला x is a natural number. So can anyone think of the natural number which is lesser than 25 by 6? अगर आप 25 by 6 करोगे तो 6 4s are 26, 6 4s are 24 आता है. So it will be 4 point something. Correct. So 4 point something से छोटे natural number. So x is a natural number such that 1, 2, 3, 4 is a solution. Am I right? क्योंकि आपको 25 by 6 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं और नेचुरल नंबर में 1 से ही स्टार्ट होता है ना. सो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे आप सोचोगे तो 4, 3, 2 and 1. These are the natural number which is possible. So our solution set will be 1, 2, 3, 4. Very simple, very easy. चलो, let's have a look at second. X is an integer such that, अब देखो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0. करेक्ट. 1, 2, 3 and 4 is a solution. करेक्ट. अगर x इंटीजर लेना है तो इंटीजर में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीन टाइप के इंटीजर आते हैं. करेक्ट. इंटीजर का मतलब ऐसे होता है कि जो हमारे लिए सिर्फ काइंड ऑफ नेचुरल नंबर में बट नेगेटिव साइड है ना. दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो डेफिनेटली. सो माइनस इनफाइनाइट से लेके कम करते बढ़ाते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. वी कैनॉट गो बियॉन्ड 4 बिकॉज वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा. Are you getting? So whenever we have something like this inequality and we want to find if x is a natural number, if x is an integer, if x is a real number, then we are supposed to solve like this. Now in this particular question only, if it is say कि x is a real number, तो real number के हिसाब से हम बोल देंगे कि माइनस इनफाइनाइट से 25 by 6 in open interval. That's it. क्योंकि real number contains everything. जो भी है वो सब real number में ही आता है. So that is how we can do. Correct. You can pause the video and note it. Now let's have a look at question number 3. I skipped the second one for you people. You can try at home. From this exercise, I am going to give you a bunch of problem to practice at home because almost all the problems are very much similar and there is no meaning of wasting time doing the same kind of problem again and again and again. If it is again, I can understand, but if it goes 2 times again, it's not good for you people. Correct. चलो, 5x minus 3 less than 7. This is the inequality and we want to find when x is integer and x is real number. See, real number key. Correct. So what I will do, I will add 3 on both the side first. Correct. 3 add करने से inequality में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Simple. Now 3 get cancelled. So 5x less than 10. Then we'll divide both the side by 5. ये अभी लिख रहा हूं, later on I will stop doing this thing and I will directly say it and do it. X less than 2. So again this inequality is true when first x is an integer. तो again क्या आएगा? Such that -3, -2, -1, 0.
करेक्ट, 1 and 2, क्या 2 आएगा? नो नो नो, लेस देन 2 है ना, इक्वल टू नहीं बोला है, लेस देन 2, सो -1 इज द लास्ट इज अ सॉल्यूशन, करेक्ट. एंड इफ वी लुक एट व्हेन x इज अ रियल नंबर, देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल द नंबर्स विच इज लेसर देन 2 सच दैट, अब मैं इसे ना सॉल्यूशन सेट में अगर लिखने जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, सो आई विल राइट लाइक दिस, माइनस इनफाइनाइट से 2 इज अ सॉल्यूशन. आई रोट दिस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट से 2, करेक्ट, क्योंकि 2 से छोटे हर एक रियल नंबर हमें बताने हैं. So this is how we can show them. Am I clear? Pause the video and note it down. Now let's try to solve the inequalities for real x. Now we are just simply looking to solve, है ना? We are not going to find for a natural number or integer or a real number. We are just simply looking to solve. So whenever we say something like this, that means we are always going for the real number, है ना? ऐसा नहीं है कि बस लिख के छोड़ देना है. We'll write कि इसका solution set ये है. Solution set is very much compulsory. Now question number 6 is 3x minus 7 greater than 5x minus 1. Now how we are going to solve this? Same rule, same concept, सब वही फॉलो करेंगे. तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, +7 + 1 दोनों साइड पे ऐड कर दिया, है ना. अब ये किया ना तो इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है. देखो यहाँ पे 1 कट हो गया, यहाँ 7 कट हो गया. नो नो नो, वी शुडंट डू लाइक दिस, सॉरी. चलो दोनों साइड पे +7 करते हैं ओनली. सो 3x minus 7 + 7, 5x minus 1 + 7. So this 7 get cancelled and it will become -+6 because 7 is the greater one. So sign बड़ी की आएगी. So 3x greater than 5x + 6. Now the problem here is कि अगर मैं -5x करूंगा, ध्यान से देखना दोनों साइड पे -5x, then here it becomes -2x greater than 6. Now the important steps, understand here. क्या कहा था मैंने कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, योर इनइक्वालिटी चेंजेस. तो यहां पे अगर मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. दिस 2 गेट कैंसल विद नेगेटिव साइन, x विल बी लेसर देन -3, करेक्ट. सो व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट इज -इनफाइनाइट से -3. आर यू गेटिंग मी? दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको कोई भी टाइप की डिफिकल्टी फील हुई होगी. लेट मी रेज अ लिटिल बिट ऑफ बार. लेट्स गो फॉर 9th क्वेश्चन, जो कुछ ऐसा है, x + x/2 + x/3 लेसर देन 11. अब यहां पे तो चलो ठीक था, ऐसा प्लस माइनस करके हमने खत्म कर दिया. यहां क्या करेंगे? सो यहां पे इनफैक्ट इजी ही है, बट द थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी मच नीडेड. सो कैन यू सी ऑल ऑफ देम हैविंग x? तो लेट मी टेक x कॉमन. सो क्या बचा? 1 + 1/2 + 1/3 लेस देन 11. आई कैन सिंपली टेक एलसीएम इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट. चलो एलसीएम ले लेते हैं. 6 आएगा. 6 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6 लेसर देन 11. सो ये हो गया x. चलो ऐसे नहीं लिखते. 6 + 3 9, 9 + 2 11x/6 लेसर देन 11. दोनों साइड पे 11 से डिवाइड कर दो. दोनों साइड पे 11 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट x/6 लेस देन 1. दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट x लेस देन 6. तो सॉल्यूशन सेट कितना आएगा? सॉल्यूशन सेट इज -इनफाइनाइट से 6. ओपन इंटरवल ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे लेस देन की साइन है. लेस देन इक्वल टू आ जाए तो हम वहां पे क्लोज इंटरवल लिख सकते हैं कि 6 कैन बी इंक्लूडेड एज वेल. Am I clear? I hope you people don't have difficulty in understanding this kind of a problem. Simple. चलो let's have a look at the next one. Next one में जाते हैं हम. Let's say 11. It's a nice one. 3 times x minus 2/5 less than equals to 5 times 2 minus x/3. Simple. Now see, अब
इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, यू गेट द आइडिया कि हमें कब कहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है ना। अब अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है। सो आई स्टॉप बीइंग सेइंग दैट कि मैंने यहाँ ये मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह किया है ना। सो सिंपली अगर देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 9 टाइम्स x माइनस 2, दिस विल बिकम 25 टाइम्स 2 माइनस x। मतलब पहले हमने दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ 3 3 9, यहाँ पे 3 कट हो गया। फिर दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 कट हो गया, यहाँ पे 5 5 से 25 हो गया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब एक काम करते हैं, इनको अंदर भी दे देते हैं, तो इट बिकम्स 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x, है ना। पहले कांस्टेंट हटाने का टारगेट रखेंगे और फिर x को प्रॉपरली बैलेंस करेंगे। अब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। नाउ डोंट रिमूव दिस 50, व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस 18। क्यों? क्योंकि फिर मैं 25x ऐड करके यहां से हटा के यहां ले आऊंगा। 25x ऐड करके यहां रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल रिमूव 18, मतलब के प्लस 18, 50 माइनस 25x प्लस 18, तो ये हो गया 9x लेस देन इक्वल्स टू 50 प्लस 18 68 माइनस 25x। सिंपल। अब दोनों साइड पे 25x ऐड कर दो, तो 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल्स टू 68 माइनस 25x प्लस 25x। सो 25 प्लस 9 34x लेस देन इक्वल्स टू 68। दोनों साइड 34 से डिवाइड करो, इट विल कम आउट एज लेस देन इक्वल्स टू 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज माइनस इनफाइनाइट से 2 बट क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 2 बोला है ना। दैट मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट नहीं। ध्यान से ना, इसका मार्क्स होता है अगर आपने सॉल्यूशन सेट प्रॉपरली नहीं लिखा ना, योर मार्क्स कैन बी लॉस्ट, है ना। आप अननेसेसरली आधा मार्क हमें घुमाना नहीं है, करेक्ट। लेट्स डू 1 और 2 मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप, और उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन से टाइप के प्रॉब्लम और आएंगे। लेट्स से 12th वन ऑल्सो, है ना। ऐसा तो 12th इजी है, बट लेट मी डू फॉर यू पीपल। 1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 इंटू x माइनस 6। सो समहाउ इसी के जैसा है ना। यहाँ पे क्या किया था, पहले 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे, फिर 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे। सेम थिंग यहाँ पे भी सोचेंगे कि भाई पहले 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, फिर 3 से किया, तो इट बिकम 3 टाइम्स 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6। 3 अंदर दे दो तो 9x/5 प्लस 12, ये 2x माइनस 12। अब क्या करें, तो कि भाई पहले ये 5 को रिमूव करने के लिए 5 से एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 9x प्लस 12, 12 5 60 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 12। अब दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन 5 2 10x माइनस अगेन 12 5 60। अरे 60 60 चले जा रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, हमें ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक काम करते हैं, देखो वेर इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ x दिस साइड, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इन इक्वालिटी को ना ऐसे घुमा देते हैं कुछ इस तरह से। देखो 10x माइनस 60 लेसर देन इक्वल्स टू 9x प्लस 60। वी कैन डू दैट ना। अगर ये इससे बड़ा है तो डेफिनेटली ये इससे छोटा होगा, तो वही क्या है। एम आई क्लियर? देखो यहाँ पे पॉइंटेड वाला जिस साइड है, यहाँ पे भी पॉइंटेड उसी वैल्यू को है। जिसको ना समझ में आता हो इतना ज्यादा उसके लिए, है ना। अब क्या करो, पहले यहाँ से ये माइनस 60 हटाना है, तो क्या करेंगे प्लस 60 प्लस 60 किया तो ये हो गया 60 प्लस 60 120। फिर यहाँ से 9x हटाना है तो माइनस 9x करेंगे दोनों साइड पे, तो ये बच गया x लेस देन इक्वल्स टू 120, है ना। यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, अगेन माइनस इनफाइनाइट से 120 इन क्लोज इंटरवल। आर यू गेटिंग मी?
कि देखो किस तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। ये मेथड आपको समझनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटी चेंजेस के रूल्स ध्यान में रखने हैं, एंड यू आर वेरी मच गुड टू गो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला है, 37 माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 5 greater than equals to 9x minus 8 times x minus 3. Now see, the question is just raising little bit of bar, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे डेवलप करने की ट्राई कर रहा है, कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस वगैरह में देने की, हमें सिंप्लीफाई ही करना है, दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। सो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, लेट मी ओपन द ब्रैकेट। यहां पे हो गया, यहां पे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। सी कितना सिंपल हो गया। सो 37 में से 5 गए, 32 माइनस 3x, 9 माइनस 8 1x, सिंपली x ही बचा, प्लस 24। करेक्ट। अब क्या करते हैं, तो कि भाई देखो मैं ये 3x को इधर लाने की ट्राई करूंगा, सो आई विल रिमूव फर्स्ट 24 फ्रॉम हियर, है ना, दोनों साइड से। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको रिवर्स कर ही लेते हैं कि x प्लस 24 इज लेसर देन इक्वल्स टू 32 माइनस 3x। अब क्या सोचना इजी रहता है, 24 रिमूव करो, सो 32 माइनस 3x माइनस 24, सो कितना हो जाएगा, x 32 में से 24 यानी 8 माइनस 3x। अब दोनों साइड पे प्लस 3x कर दो, so this will become 4x less than equals to 8, तो x is less than equals to 2। Why? Because हमने दोनों साइड 4 से डिवाइड किया है, and the solution set is माइनस इनफाइनाइट से 2। सिंपल है ना। आई डोंट थिंक सो यहां तक हमें कोई भी डिफिकल्टी हुई होगी इसको समझने में। लेट्स से 15th वन, x by 4 which is less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5। इस तरह से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। अब बिफोर वी डू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, लेट्स डू द एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन ऑल द थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, है ना। तो देखो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, ये x by 4 को रहने दो एज इट इज, उधर एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, एलसीएम 15 होगा, 5 5 जा 25x माइनस 10 माइनस 7 3 जा 21x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 15, x by 4, 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15 आ गया। सिमिलर टू द प्रॉब्लम 11th एंड 12th, समथिंग लाइक दैट, है ना। दोनों साइड पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, देन 15 से मल्टीप्लाई करो। सो पहले मतलब दोनों साइड कर दिया तो 5x और 4 4 जा 16x माइनस 4। सिंपल। अब दोनों साइड पे माइनस 16x करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमूव दिस 16x और हियर, है ना। तो 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x, तो ये हो गया माइनस एक्स लेस देन माइनस 4। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आई अप्रिशिएट देम, बट डोंट अननेसेसरीली यूज योर इंटेलिजेंस इन सच अ वे के माइनस माइनस कट एक्स लेस देन 4। अरे नहीं भाई, समझाया था मैंने इन द लास्ट वीडियो that if you multiply with a negative sign or a negative number on both the side, then your inequality changes। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई विल गेट x ग्रेटर देन 4, और जिसकी वजह से मेरा सॉल्यूशन सेट जो है वो बनेगा 4 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट, है ना। आपको याद हो तो मैंने समझाया था ऐसा कि -2 इज लेसर देन 5, बट अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या -2 इज लेसर देन -5? नो, -2 इज बिगर देन -5, ग्रेटर होता है वो तो। करेक्ट। सो इनइक्वालिटी चेंज होती है, दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक केयर ओवर हियर। ये मिस्टेक होती है एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के हमें कॉन्फिडेंस तो रहता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, सब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करोगे,
यहाँ पे आके यू विल आउट ऑफ 100 90% अगर केयरफुल नहीं रहे ना तो 90% स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बिकॉज इतने सालों से जो हम कंडीशन हुए ना कि नेगेटिव नेगेटिव दो साइड पे हो तो काट दो, वो यहाँ पे हो जाता है हमसे, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, मैं ऐसा कहूंगा कि उनका जो माइंड सेट होता है ना कि दोनों साइड पे नेगेटिव है काट दो, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बिकॉज दिस इज इनइक्वालिटी, है ना। तो मुझे अगर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दैट मीन्स माई इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, सो इट बिकम्स x ग्रेटर देन 4। प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फिर बाद में ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमें तो आता था लेकिन हमने किया नहीं, अरे ये तो कैसे हो सकता है ऐसा। सो प्लीज टेक केयर कि जब इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, योर इनइक्वालिटी चेंजेस 110%, इट चेंजेस, करेक्ट। चलो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम फॉर द डे। आज के लिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। 2x minus 1/3 is greater than equals to 3x minus 2/4 minus 2 minus x by 5। कुछ हद तक इसके जैसा ही है। आई डोंट नो समथिंग सिचुएशन लाइक दिस कम और नॉट, बट कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है। सो 2x minus 1/3 एलसीएम लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप पूरे के पूरा राइट हैंड साइड बात कर रहे हैं ना, तो ऑन दैट पर्टिकुलर साइड यू कैन इजीली टेक एलसीएम। सो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20। 2x minus 1/3 greater than equals to 15 plus 4 19x minus 10 minus 8 minus 18 डिवाइड बाई 20। सेम थिंग चल रहा है। फिर कहा था 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, देन 15 से मल्टीप्लाई, तो वही सेम चीज 20 से मल्टीप्लाई, चलो तो 20 इंटू 2x माइनस 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 19x माइनस 18, 20 2 जा 40x माइनस 20, 19 3 जा 57x माइनस 18 3 जा 54। Which x is bigger? घुमा दे, चलो 57x minus 54 is lesser than equals to 40x minus 20। तो पहले दोनों साइड पे 54 ऐड करेंगे। अगर 54 ऐड करता हूं तो 57x लेस देन इक्वल्स टू 40x प्लस 54 में से 20 रिमूव करो यानी कि 34 प्लस 34, और दोनों साइड पे 40x माइनस, तो 57 में से 40 तो 40 10 15 17, 17x लेस देन इक्वल्स टू 34, दोनों साइड पे 17 से डिवाइड करो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। आई गेस हमने 3 से 4 प्रॉब्लम ऐसे किए ना जिसमें सॉल्यूशन सेट x लेस देन इक्वल्स टू 2 आया है ना। सो द सॉल्यूशन सेट, मैं थोड़ा क्रॉस में जा रहा हूं क्योंकि आपको दिखे, इज माइनस इनफाइनाइट से 2, ये ओपन इंटरवल है, करेक्ट, माइनस इनफाइनाइट से 2 में क्लोज इंटरवल। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अगर हमें सॉल्व द इनइक्वालिटीज पूछी हो तो हम कुछ इस तरह से उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, सिंपल। बट ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म नहीं होती है, एक्सरसाइज में कुछ और भी है। हम ग्राफ पे प्लॉट करना भी देखेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इस पर्टिकुलर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं पूरा एक क्लास डिवोट करना प्रीफर करूंगा, करेक्ट। ग्राफ वाले जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल है, वो मैं चाहूं तो अभी भी इसमें भी बता सकता हूं कि भाई इसका सॉल्यूशन सेट 4 से इनफाइनाइट है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, यहाँ पे ऐसे करके बना दो 4 से इनफाइनाइट, मतलब ये बन गया आपका ग्राफ। यहाँ पे ऐसे नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका ग्राफ। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उस पे से जो डिड्यूस करना है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस यू गेट इनटू दिस शेप लाइक दिस, आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में एक बार मिल गया, उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बिकॉज इफ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम देन दैट इज नॉट अ बिग डील। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिड्यूस कैसे करेंगे, that we will understood in the next session. So we'll stop here, and please हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए so that they can also study
दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।